So there is a tiny word attached to destiny itself. It says there is some scope of some changes which you can make. Like पहले कार्तिक तिवारी लिखते थे, कार्तिक आर्यन, पहले कार्तिक तिवारी लिखते थे, फिर then someone suggested कि आप आर्यन लगाओ कार्तिक के आगे, then he started using कार्तिक आर्यन. मैं आपका फेस, आपकी आईब्रोज, फोरहेड, ईयर्स देख के मुझे समझ में आया ये कभी ना आया ये. कलेश, क्लीशेज और कटाक्ष। तो क्या अंगूठी पहनने से आपकी किस्मत बदल सकती है? क्या घर में पूजा कराने से आपके घर में शांति आ सकती है? या क्या शनि देव आपको परेशान कर सकते हैं? ये सारी चीजें, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या, क्या ये सच में होता है या ये एक मानव भ्रम है? आज इन सब चीज़ों पे ही हम लोगों के साथ बात की संदीप कोचर सर ने, एक ऐसा इंसान जिसके साथ एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन अपनी स्पिरिचुअल बिलीव्स, अपनी एस्ट्रोलॉजिकल साइड को लेके बहुत ट्रस्ट करते हैं। आज उनसे बात करके हमने एस्ट्रोलॉजी के पीछे की साइंस जानी कि लॉजिक क्या होता है चीज़ों का, एक्चुअली जेमस्टोन्स की क्या वैल्यू है, आपका राशिफल क्या होता है। आज हमने इन्हीं सारी चीज़ों पे बात की, तो बिना ज़्यादा समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज के कटाक्ष। Hello sir and welcome to Kataksh. थैंक यू सो मच. I think stars बहुत perfectly align हुए होंगे, तब आज आपसे मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली है. Yeah, I think there's always the right time to do the right thing, and you guys are doing the great thing already, so that's why. Thank you so much sir. I wanted to ask first कि जैसा stars की alignment की अभी opening statement में बात की, तो क्या ये actually stars की alignment से related चीज़ें life affect करती हैं? क्योंकि I don't think there's any better person to answer this question than you. आप Yeah, it's been 23 years of my journey with astrology, Shikhar. और मुझे लगता है कि everything is a part of your programming. इसको हम कहते हैं destiny. yes. And destiny is something which is pre-written, pre-scripted and predefined. So something which is already written, you are just following the track. So this, you belong to a new generation, you may not completely accept it or believe in it, but astrology is a great science. It is a part of Vedas, and from Vedas to MacBook, you know, if it is still on, then definitely it has a substance, and it can help you to plan your life. If you ask me what is astrology, I'm questioning on it. What is astrology? Then I will say astrology is nothing but knowing yourself first, to know who you are. Because most of the people, they feel I know it all and please don't teach me. So if you are too intelligent to close your ears and you know what you are, and you will remain the same what you are. When Steve Jobs said, "Stay hungry and stay foolish." So hungry is a desire, you know, to do more or know more, and foolish is don't feel that you know it. So that is the reason the learning is something which is every day is important. I may today learn something from you, so that is how you have to open your mind and open your ears and listen more. So that is a good idea. सर लाइक यू सेड कि आप एक प्री डिफाइंड डेस्टिनी होती है, आप उसको फॉलो करते हो, बट गीता में कहा गया है कि आप कर्म करो और जो आप कर्म कर रहे हो उससे आपकी डेस्टिनी खुद डिफाइन होगी. क्या हम डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. देखिए डेस्टिनी का इफ यू आस्क मी, इट इज 70% जो है वो फिक्स चीज. ओके. एंड यू चूज योर पेरेंट. नो आपको पता ही नहीं था काम पैदा होने वाले हैं कि भैया हम अंबानी बनेंगे, बच्चन बनेंगे, गांधी बनेंगे, मोदी बनेंगे, कहीं नहीं बनेंगे. You have no clue. You can't choose your parent. So basically you can't choose anything. There are a lot of things which are, you know, imposed on you in a way. You know, कौन से शहर में पैदा हुए हैं और क्या सरनेम है आपका, कौन सा religion है. So everything is a part of some connection from the earth. In Sanskrit we call it prarabdha. The leads in the first birth, and they are responsible for this. So thing is, you know, everything is a part of that journey. And bigger scale में मैं कहना चाहता हूँ, there are two things which you have to bring it in your system. If you feel that everything is destiny, like I said, then let's go home and enjoy. But astrology also said, like you said about Karam Kid. Karam is the most important thing. Even in astrology, the bottom line says Karam Kadan. Your deeds will define your destiny. जितनी आप एफर्ट करेंगे उतना डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस कर सकते. एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउसेज होते हैं. थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ पराक्रम, योर इनिशिएटिव, और उसके सामने होता है 9th हाउस, द हाउस ऑफ लक. मोर इनिशिएटिव यू टेक, मोर यू कैन इन्फ्लुएंस योर लक. एंड बाकी डिपेंड करता है आपका टाइम वक्त कैसा है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट टाइम. टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज व्हाट वी कॉल दैट. सो मेरे हिसाब से डेस्टिनी की स्पेलिंग अगर हम देखें, क्या है स्पेलिंग डेस्टिनी?
English spelling हाँ DESTINY. DES. TIN. So there is a tiny word attached to destiny itself. It says there is some scope of some changes which you can make. हाँ. तो क्या है वो आपका free will है. So what opportunities you have got, you know, जैसे सबको प्लेटफॉर्म मिलता है. अब अभिषेक बच्चन, he was born in the family of a legend, you know, वहाँ पे उसकी मेरे नाम के आगे बच्चन लगा होता, मेरी वाइफ थी मिस यूनिवर्स हो सकती थी. So it is something, you know, which is a part of your programming destiny. But what do you make out of it? This is very important. तो वो आपका कर्म, आपका हार्डवर्क, आपका इनिशिएटिव, आपकी राइट प्लानिंग, टेकिंग राइट डिसीजन, वर्किंग ऑन योरसेल्फ, being in an optimistic and positive state of mind, and most importantly is your behavior. So if somebody asks me what is the most important thing in life, I tell them behavior. Your behavior plays a great. So if you are running a great time and your behavior is bad, you will still not get success what you want, because you will keep spoiling your relationship. And what if your time is bad but your behavior is good? Then आपका bad phase भी निकल जाएगा, because of your good behavior, people will support you, they will become friendly to you, they will support you, they will help you. This is what it is. So I think जो आपने सवाल किया, कर्म definitely plays a great role in life, and you can definitely add on few things which can help you to pass through a negative phase. Like I say, time is bad, work hard, and very harder. And if time is good, then again work hard, because then this is the time even putting little effort can give you 10 on 10. So this is all about like how. अच्छा, जैसा आपने कहा कि पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग है, तो देयर इज वन थ्योरी दैट आई रेड जो कि मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी, कि आप पैदा ना होते हैं अगर आपके पेरेंट्स शादी न करते, एंड सिमिलरली आपके फादर पैदा ना होते अगर उनके पेरेंट्स शादी न करते. तो इस तरह से जब आप कोर में जाओ हिस्ट्री के, तो यू विल रीच द बिग बैंग, कि जब वो पहला बैंग हुआ होगा उसके बाद ये ऐसे ऐसे प्रोसेसेस ना होते तो आज तुम एग्जिस्ट ना कर. तो क्या बिग बैंग के टाइम में हम सबकी डेस्टिनीज लिख दी गई कि ऐसा ऐसा होना ही है, इसी तरीके से पीसेस फॉल करेंगे? Everything is interrelated somewhere. पहले क्या होते थे, people used to ask, आज से कई नबी 100 साल पहले, कि पंडित जी हमारे कितने डजन बच्चे होंगे. उसके बाद बदलता चला गया, 8-10 बच्चे नॉर्मल हो गए. फिर उसके बाद हम 2 हमारे 4, हम 2 हमारे 2, फिर हम 2 हमारा 1, फिर हम 2 हमारा पेट. तो हॉरोस्कोप इज सेम, प्लैनेट्स आर सेम, और माइंडसेट है सेम. तो अगर आपको कोई बच्चे पैदा करना भी नहीं था, लीडर चेंज हो जाएगी, या यू नो वी आर हियर टू एंजॉय आवर ओन लाइफ, यू नो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट. पीपल आर नॉट इवन प्लानिंग टू हैव अ बेबी. तो वो कहाँ, वो सब सिस्टम तो है, वो चेंज होता जा रहा है वक्त के साथ. So there are things which are pre-designed, pre-defined and pre-written, but there are also things which keep on changing with time and mindset. So तुझे क्या चाहिए, ज़िंदगी is very important. Like, so if you are open that this is your responsibility towards your own life and your own family and maybe society at large, and definitely you will try to do things in the right manner. एक कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियन है कि आप कर्म, मेरा ओपिनियन है, मतलब देखा है मैंने ऐसा, कि आप कर्म करो, बोलते हैं कि आप कर्म करो आपको फल की प्राप्ति होगी, जो भी है. मैंने बहुत लोगों को देखा है जो हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, बहुत उन्होंने मेहनत की होती है, पढ़ाई की होती है, अपने ड्रीम्स को चेज किया होता है, बट उनको सक्सेस नहीं मिल रही होती है. तो वो भी डेस्टिनी का ही पार्ट है, कर्म तो उन्होंने भी किया है. So as I've said, luck means your effort and your right time. That is how can give you success. When time is not right, or maybe something is not meant for you, or maybe you are not ready to get it. So we keep on complaining, क्या हो रहा है, you know, I'm putting my everything. That आप भगवान को, ऊपर वाले को भी कभी कभी कहते हैं, you know, ये कुछ मुझे मिल नहीं रहा है, because maybe he knows. So I always say, give your best and leave him the rest. तो अगर ये आप सोचते जाएंगे कि जो आपने कहा कर्म किए जब फल की चिंता मत कर, क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा. और कब मिलेगा? एक ही दुआ आता है कुछ, कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, और रुत आए फल होए. जब रुत आएगी, जब मौसम आएगा, तब आपको फल मिलेगा. तो आपने 100 बार करना आएगा, वो आम तो तभी आएगा जब उसका मौसम आएगा और जब पेड़ बड़ा होगा. तो एवरीथिंग कम्स टू यू एट द राइट टाइम. तो फल कब आएगा? तो जो एफर्ट है, आपने बीज किसका बोया है, वैसा फल मिलने वाला है. और कुछ आपके एस्पिरेशंस कैसे, दे आल्सो प्लेज ग्रेट. एंड आई एम ए पोएट एक्चुअली. तो मैंने एक बार लिखा था कि ख्वाहिशें हैं आसमान, डिजायर, ख्वाहिशें हैं आसमान और हकीकत है जमीन, और दौड़ रहे हैं सभी उड़ने की फिराक. तो अगर यू आर रनिंग so fast that I will fly someday, so this is wrong approach.
हाँ वो you fly, you have to take another route. You have to be on a flight to fly. What I'm saying is, the what I'm saying is कि life में planning आपकी कैसी है और aspirations आपकी कितने हैं and how capable you are. So if you are desiring of something which may not happen or which is not a part of your destiny, then you keep on waiting. और जैसे आपने कहा कि लोग मेहनत करते हैं और सक्सेस मिल जाता है या बिना मेहनत करें और मेहनत करके बिल्कुल नहीं मिलता है, वो उसका टाइम ठीक नहीं या उसका खुद का कॉन्शियस में भी करेक्ट नहीं है या उसका अप्रोच पॉजिटिव नहीं है बिकॉज व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू एंड आई बिलीव इन पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन. तो आप कैसा अगर आप डाउट डाल देंगे अपने थॉट में आई थिंक नहीं तो फिर तो नहीं होगा. तो योर माइंड योर थॉट बिकम योर एक्शन. मेरा बचपन से फेवरेट स्टेटमेंट है शेखर कि व्हाट गोज अराउंड कम अराउंड. तो ये तो मैं बचपन से बिलीव करता हूँ. तो जैसा आप सोचते हैं जिंदगी बिल्कुल आपकी वैसी बन जाती. तो दिस इज व्हाट यू हैव टू ब्रिंग इट इन योर सिस्टम शुभम राइट. तो ये जरूर है कर्म करो फल की चिंता मत करो क्योंकि फल जरूर आएगा बिकॉज आपने इनिशिएटिव लिया है हार्डवर्क किया है बट वेट फॉर द राइट टाइम एंड दैट विल कम इन द राइट प्लेस. सर कर्म के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं. हिंदू माइथोलॉजी में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो आई थिंक पैदा होने से ही बन जाती है बच्चे की, हाँ. वो है कुंडली. तो कुंडली का क्या ये होता है बिकॉज समटाइम्स एज स्टूडेंट्स हम लोग जब तक स्कूल में थे तब तक ऐसा होता था कि अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो पेरेंट्स यूजुअली कहते थे कि पंडित जी को एक बार कुंडली दिखा देते हैं. या कोई भी लाइफ में इशू होता है सपोज बेटी की शादी नहीं हो रही है तो फिर पेरेंट्स का अप्रोच होता है कि एक बार कुंडली के दोष देख लेते हैं. तो क्या एक्चुअली कुंडली इतनी पावरफुल होती है किसी इंसान की? देखिए शेखर हॉरोस्कोप जो आप कुंडली कह रहे हैं इट इज नथिंग बट द प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड. द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट एट द टाइम ऑफ बर्थ जिसको हम हॉरोस्कोप कहते हैं दैट डिफाइन हु यू आर. एवरीवन इज डिफरेंट. हर इंसान की सोच अलग है, थिंकिंग अलग है, साइकोलॉजी अलग है, लाइकिंग डिसलाइकिंग सब अलग है. कोई बहुत एग्रेसिव है, कोई बहुत इमोशनल है, कोई बहुत इंट्रोवर्ट है, कोई बहुत पेसिमिस्टिक है. तो ये कैसे होता है? वाई इवन ट्विन ब्रदर्स और ट्विन सिस्टर्स दे आर डिफरेंट. तो ये कैसे होता है? तो जब आपके प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट होते हैं वो आपके साइकोलॉजी को रूल करते हैं तो आपकी फितरत बिल्कुल वैसी हो जाती है. तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर का रोल इसलिए बड़ा है बिकॉज एस्ट्रोलॉजर इज ए स्ट्रेंजर एंड ही कैन टेल यू इन सेकंड्स एंड हु यू आर. अब आपको इंट्रोस्पेक्शन होता है कि दिस इज माई फ्लॉ. मैं क्यों हर बात को इतना सोचता हूँ, मैं क्यों इतना डिटेल में चला जाता हूँ, या मैं क्यों इसको दिल से लगा लेता हूँ, या मैं क्यों रिएक्ट कर जाता हूँ. तो ये बातें जब आपको समझ में आएंगी तो क्या होगा, यू विल इंट्रोस्पेक्ट एंड देन यू विल ट्राई टू वर्क ऑन इट. तो मेरा एक फेवरेट स्टेटमेंट है डेस्टिनी इज फिक्स, नो वन कैन चेंज बट ए चेंज इज चेंज व्हेन यू चेंज. फिर मैंने पोएट्री लिखी कि आप क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का, जब तुम नहीं बदले तो तकदीर क्या बदले. तो चेंज यू हैव टू ब्रिंग इट इन यू. और परफेक्ट कोई भी नहीं है, आप भी नहीं है, ये भी नहीं है, मैं भी नहीं. तो परफेक्ट नहीं है लेकिन अपने इम्परफेक्शन को रियलाइज करना. आई हैव सीन पीपल इवन दे रीच एट द एज ऑफ 60 दे डोंट चेंज, दे रिमेन द सेम. वैसी उनका थॉट प्रोसेस रहता है, वैसी वो जिद्दी है, कोई बहुत गुस्से वाला है, वो बदलते नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उन्होंने कभी रियलाइज ही नहीं किया. तो दे रिमेन द सेम. अपने सारे उनके जो रिलेशनशिप है वो स्पॉइल होते रहते हैं. दैट इज हाउ दे मेक देयर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड. तो मैं उनको उनके लिए पोएट्री लिखी थी कि इल्म तो है, इल्म इज नॉलेज. इल्म तो है उन्हें सारी जहाँ का, लेकिन वो खुद कौन है इसका उन्हें पता नहीं. सर एस्ट्रोलॉजी एक इंसान के पाथ को चूज करने में कैसे मदद करती कि सपोज देयर अ पर्सन ए, उसको क्या पाथ चूज करना चाहिए और वो किस पाथ में चल रहा है, वो सही है या गलत है, ये कैसे डिफाइन होता है एस्ट्रोलॉजी में? देखिए देयर आर टू साइड फर्स्ट. एक चीज़ आपने को चूज की है और वो गलत है, वो सोसाइटी की नज़र में गलत है, वो लॉ की नज़र में गलत है, वो कॉन्शियस लेवल पे गलत है. वो डिपेंड करता है कि गलत किसकी नज़र में है, पहली बात. दूसरा टाइम, जो हम कहते हैं कि भाई साहब आपकी मंगल की दशा चल रही है, आपकी शनि की दशा चल रही है, उसकी राहु की है या उसकी गुरु की दशा चल रही है. वाई वी यूज द वर्ड दशा? दशा मतलब मन की दशा. तो जो प्लैनेट आपको रूल करता है आपका स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल वैसी हो जाता है. मैंने मेरा एक सीरियल आता था, उसमें मैंने एक डायलॉग था कि जब वक्त बदलता है तो सितारे बदल जाते हैं और सितारों के बदलते ही इंसान की सोच बदल जाती है. तो मोमेंट द प्लैनेट स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग यू, यू स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली. कितनी बार लोग कहते हैं यार तू बदल गया, यार तेरे पहला नेचर ऐसा था, अभी तू यू हैव बिकम लाइक दिस. कोई पहले बहुत ही हैप्पी रहता था, वो अब बहुत ही इंट्रोवर्ट हो गया है, या कोई बहुत एग्रेसिव हो गया है, कोई बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है क्योंकि उसकी दशा बदली. द मोमेंट द प्लैनेट स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग यू, द प्लैनेट का जो प्रॉपर्टी होता है वैसी वो इंसान को बना देता है. जैसे केतु की दशा में इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है,
क्योंकि वो मटेरियलिज्म से कोई कनेक्शन नहीं है एंड वी आर ऑल मटेरियलिस्टिक, तो वो इंसान को फ्रस्ट्रेट कर देता है। तो ऐसे ही मून में इंसान इमोशनल डिसीजन लेने बैठ जाता है। सर प्लैनेट्स कैसे कंट्रोल करते हैं हम लोग? प्लैनेट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, प्लैनेट आपको कंट्रोल करते हैं। हाँ। तो नाउ फर्स्ट यू नीड टू नो वेदर देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द सिस्टम, कि मेरे अंदर कमियां क्या हैं। जो मैंने कहा ना, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हु यू आर। तो वही मैंने बोला था सबसे पहले कि इफ यू फील आई एम परफेक्ट, आई नो इट ऑल, तो फिर यू विल नेवर चेंज। इफ यू आर वॉकिंग, यू कीप वॉकिंग, इफ यू डोंट चेंज योर पाथ, तो दैट इज वेयर द एस्ट्रोलॉजर इज मेकिंग यू अवेयर एंड रियलाइज दैट यू नो भाई साहब, व्हाट यू आर थिंकिंग इज नॉट राइट एंड व्हाट पाथ यू हैव चोजन इज नॉट राइट। टू नो योर करेक्ट पाथ यू शुड गेट वंस एटलीस्ट एक बार अपनी कुंडली एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए और जानने की कोशिश करिए कि व्हाट इज माय जर्नी, और मुझे डिसीजन लेना है कभी इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइफ, व्हाट डिसीजन यू नीड टू टेक एंड दैट इज हाउ यू कैन मेक योर लाइफ मीनिंगफुल। तो जैसे आपको यहाँ से पुणे जाएंगे, आपको रास्ता तो मालूम है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आज वहाँ पे ट्रैफिक जाम है या रोड डिवीजन है या वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया है या कहीं लेफ्ट राइट यू टर्न लेना। जीपीएस कौन बताता है? जीपीएस। वो जो जर्नी ऑफ लाइफ है उसका जो पाथ है वो बताता है एस्ट्रोलॉजी। Yes, astrology पे कि भाई this is the right, this right time or this is not the right time, and this is the time you need to take a left, or if time is not going right, then you have to take a U-turn also. तो चंद्रमा की दशा जैसे स्टेटमेंट, एक्चुअली चंद्रमा यहाँ पे एक मेटाफर है जो कि किसी प्रॉपर्टी को रिजेंबल करता है आपके पर्सनैलिटी। Am I correct? Moon is a planet of emotion. In Indian astrology, what is your राशि? एक राशि जो है वो where your moon is placed, the most important thing. वैसे तो बाबूजी ने कहा था बच्चन साहब को कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, पर ये बात कोई मानता नहीं है। बिकॉज मन का हो तो बहुत अच्छा, यू नो व्हाट आई वांट इज हैपनिंग इज ग्रेट, इफ इट इज नॉट हैपनिंग दैट अपना बैड लक खराब है। तो जैसे ही लोग मानते हैं हाँ। तो मन के ऊपर सब कुछ चलता है। यू नो आपकी बट एक तो आपका मन है, तुझे क्या चाहिए जिंदगी। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, you like her or you like him or whoever, and that thing is not meant for you, it is not right for you, but still you want, then who is at fault? You are at fault because you don't know it is not meant for you. तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर कभी कभी डिप्रेस हो जाता है, बिकॉज वो ही और शी इज ट्राइंग टू स्विम अगेंस्ट द टाइड। तो वक्त का पता करना है। ज्योतिष का सबसे बड़ा तो नेचर मैंने बताया कि यू शुड नो हु यू आर, एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट योर टाइम, बिकॉज यू नो योर जर्नी ऑफ लाइफ, दैट इज हाउ यू कैन प्लान इट, एंड इफ यू टेक राइट डिसीजन, जो मैंने कहा एट द राइट टाइम, दैट इज व्हाट वी कॉल लक। सर मैनिफेस्टेशन की आपने बात की थी कि हमें एक स्पेसिफिक चीज़ मैनिफेस्ट करना है, हमें सक्सेस मैनिफेस्ट करना है, हमें पैसे मैनिफेस्ट करना है, हमें लव मैनिफेस्ट करना है। ये इंसान अपने लाइफ में कैसे कर सकता है? विद पॉजिटिव इंटेंट एंड क्लियर कॉन्शियस और विदाउट डाउट। अगर आप कहते हैं एक बार मैं करके देख लेता हूँ, एक बार मैं चलो देखता हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो फिर आपका नहीं होगा। मैनिफेस्टेशन हैज टू बी प्योर पॉजिटिव इंटेंट से मैनिफेस्टेशन होता है, ऐसा नहीं। और कुछ और प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो अगर मैं सोच लूँ कि रणवीर सिंह दीपिका को डिवोर्स दे देगा, फिर दीपिका से मैं शादी कर लूंगा, तो ये क्या, ये राइट मैनिफेस्टेशन है? तो अब रणवीर कपूर देखेगा तो he might look for me, but what I'm saying is everything. So what I'm saying is, you have to be practical also. तो मैनिफेस्ट भी करना है तो वन स्टेप एट ए टाइम करिए। हाँ, एकदम शांत पे जाने की कोशिश मत करिए। डू अभी आपका जो भी है, आपका पहला पर्पस है टू कंप्लीट योर एजुकेशन, सेकंड है टू गेट ए करियर, थर्ड उसके बाद होगा कि टू मेक ए बेटर करियर, देन फिर होगा मैरिज, तो धीरे धीरे फिर प्रॉपर्टी एक्विजिशन और व्हाटएवर, यू नो, तो दैट इज हाउ यू ग्रो इन लाइफ। तो वो आपके धीरे धीरे चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करेंगे तो देन इट इज ऑल गुड। और अगर आपको लगता है कि अंबानी एक डीला खाली कर देंगे आपके लिए, सो देन यू आर थिंकिंग ऑल गुड। बट आई बिलीव इन इट, आई बिलीव इन ड्रीम, आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, आई बिलीव इन पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। वो जरूर करना चाहिए। उससे कम से कम एटलीस्ट जो देखिए, कोई भी नेगेटिव मैनिफेस्ट तो नहीं करेंगे, अब पॉजिटिव ही करेंगे, व्हाटएवर मे बी गुड और बैड, बट मतलब इट इज नॉट गुड और बैड फॉर यू, बट पॉजिटिव इंटेंट रहता है। तो मैनिफेस्टेशन इज अ गुड आइडिया, यू नो, यू व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, योर थॉट्स बिकम योर एक्शन। मैंने कहा व्हाटएवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, ऑल पॉजिटिव थिंग विल कम टू यू। तो करना चाहिए, सोचना चाहिए, हमसे हम सोचोगे नहीं तो होगा कैसे। फिर कभी कभी नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं, अगर वो विजुलाइज हो गए, मतलब विजुअलाइजेशन का प्रोसेस क्या है कि उसको कैसे? वही मैंने बताया, बिल्कुल सही सवाल आपने किया कि आपने बोला आज से मैं पॉजिटिव रहूँगा और मैनिफेस्ट करूँगा, और माइंड है नेगेटिव या आपका टाइम डिप्रेसिंग चल रहा है, तो आपको सारे बुरे ख्याल आ रहे हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो मैनिफेस्ट हो जाए, नॉट नेसेसरी, बट अपने आप को बताना है कि यार वाई आई एम डूइंग इट, यू नो, आई एम क्रिएटिंग समथिंग, आई एम मैनिफेस्टिंग समथिंग नेगेटिव, तो उसको कट कर दो। एक स्टेटमेंट है, कहते हैं कट द कॉर्ड, तो डिस्कनेक्ट हो जाओ, गाने गाने लगो, म्यूजिक चला लो, बाहर वॉक पे चले जाओ,
तो ह्यूमन माइंड है वो हमेशा वनरेबल रहता है, कुछ भी ख्याल कभी भी आ सकता है। तो अगर वो ख्याल आता है तो इट इज़ अ नॉर्मल थिंग, बट उसको आपको डिस्करेज करना। सर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि मैंने देखे हैं कि आप पेपर में 5 बार लिखो आपको जो चाहिए, या आप रात में सोते समय तकिया में बोल के सो जाओ, ऐसा कुछ बहुत, ये सारे मैनिफेस्टेशन के तरीके हैं। बट मैं इसमें एक खाली ऐड करना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को सुपरस्टिशन मत बनाएं। मतलब 5 बार लिखेंगे तभी होगा, 4 बार लिखेंगे तो नहीं होगा। नहीं तो ऐसा नहीं। काउंटिंग कौन कर रहा है? तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव इंटेंट आप लिखें या ना लिखें, यहाँ लिखना जरूरी है। दैट इज मोर सबकॉन्शियस। एब्सोल्युटली। सर एक चीज़ जो पॉडकास्ट के लिए नहीं, मैं पर्सनली बहुत कंफ्यूज रहता हूँ कि ज़ोडिएक साइंस, फॉर एग्जांपल किसी की कुंडली में उसका ज़ोडिएक साइन अलग है, बट जो नॉर्मल हॉरोस्कोप डेट वाइज आते हैं उनके हिसाब से ज़ोडिएक साइन अलग होता है। तो ये वाला कंफ्यूजन क्यों ज़ोडिएक साइन? ये कंफ्यूजन इसमें किसी एस्ट्रोलॉजर की गलती नहीं है, ये गलती है लोगों की। इंडियन एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ओनली ऑन मून साइन, नॉट ऑन सन साइन। जो आपको अपना पता है कि मैं मार्च से अप्रैल के बीच में पैदा हुआ, मैं एरीज हो गया, दैट इज योर सन साइन। और इंडियन एस्ट्रोलॉजी इस पर जल्दी भी नहीं। सबने लिंडा गुडमैन की किताबें पढ़ी होगी, सबको अपना सन साइन मालूम है। बट मून साइन आपके हॉरोस्कोप में है, बहुत आसान है देखना उसको, जहाँ मून है वही साइन है आपका। जैसे 3 नंबर पे मून है तो जमाई आपका मून साइन हो गया, 4 नंबर पे है तो कैंसर हो गया, 1 नंबर पे एरीज हो गया। दैट इज हाउ इट इज क्वाइट इजी। तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी वर्क्स ऑन मून साइन। तो सारे इंडियन एस्ट्रोलॉजर वो मून साइन भी लिखते हैं, और सारे इंडियन जो हैं वो अपना सन साइन पढ़ते हैं। तो लिख रहा है वो उसके लिए पढ़ रहा है आप, तो ये हो रहा है। तो पेपर में जो हॉरोस्कोप आता है उसमें अगर मेरी डेट के हिसाब से मेरा जेमिनी है बट कुंडली के हिसाब से लियो है, तो यू शुड रीड लियो। अभी वो ओके अप्लीकेशन हो, टेलीविजन चैनल हो, जब मैं इसी में शो करता था तो वहाँ भी बोला गया कि इसमें वो डेट लिख देते हैं। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? मैं तो मून साइन पे बोल रहा हूँ। तो बोले जब पता ही नहीं है पब्लिक को तो कंफ्यूज है, तो कंफ्यूज रहने दीजिए। मैंने कहा नहीं, गलत बात है। तो मैं अपने रोज में बताता था कि जो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये इज बेस्ड ऑन मून साइन, नॉट सन साइन। तो वो एजुकेट होना जरूरी है कि यार भाई ये इंडियन एस्ट्रोलॉजी नहीं है। सन साइन इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी, वैदिक साइंस नहीं है ये। सर मैं पिछले 4-5 साल से इस कंसेप्ट पे कंफ्यूज था, आज के बहुत बहुत आसान है। इट इज नॉट अबाउट कंफ्यूजन। यही है कि कोई सन साइन पता करना आसान है। हाँ एक इस महीने 15 ये 30 साल हुए तो आपको पता है। मून साइन के लिए कुंडली देखनी पड़ेगी, कुंडली में आपका मून आपने किसी ने देखा नहीं है अभी तक। एक्चुअली नॉलेज की भी बहुत कमी है, पहले लोगों के पास होती थी ये सब नॉलेज एस्ट्रोलॉजी की, बट पहले एटलीस्ट पंचांग आई थिंक हर घर में। अभी ये चीज़ें थोड़ी कम हो गई हैं। नहीं पंचांग अभी भी है। देखिए मैंने एक बार फेसबुक में लिखा था कि एस्ट्रोलॉजी इज ऑलवेज राइट, बट एस्ट्रोलॉजर्स आर लेफ्ट एंड राइट। हाँ ग्रोइंग नंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स बिकॉज ऑफ मेकिंग इट कमर्शलाइज्ड, people are not even guiding them in the right manner. This is the divine sign. मैंने बोला part of Vedas है, oldest scriptures on planet. But unfortunately this business of astrology has become a business of fear and lies. तो जितना आप डरा लेंगे उतना पैसा कमा लेंगे। झूठ बोलना पड़ेगा। एक झूठ बोल के मैं आपसे 5 लाख रुपए कमा लूँ तो क्यों नहीं बोलूँ? बट दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट। मैं 23 ईयर से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, एक भी इंसान मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि किसी से मैंने ऐसे अननेसेसरी ले लिया, उसको डरा लिया या कोई उसकी पूजा करा दी। So that is something which is a modus operandi of astrology and it is unfortunate. अभी तो people are having fear in going to astrologer कि हम जाएंगे पता नहीं कोई दोष देते फिर कोई पूजा बता देंगे कि 1.5 लाख आधे से ज्यादा में तो लगता है कि फ्रॉड ही हो रहा है अपने साथ। एब्सोल्यूट। तो देखिए सारे प्रोफेशन अभी वक्त बदल चुका है, सारे प्रोफेशन जो हैं वैसे ही हो गए। लॉयर कभी नहीं चाहेगा आपका केस सॉल्व हो जाए। मेरा हॉस्पिटल है, आप मेरे पास आए और आपको कॉमन कोल्ड में कहूँगा आपको साइनस है या आपकी आगे नाक की हड्डी बड़ी हुई है, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा भाई साहब, हाँ मैं आपको एडमिट कर दूँ। तो कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन बट इट इज अ कमर्शियलाइज्ड थिंग। मोस्ट ऑफ देम। सर हमने कई जगह पे देखा कि लोग अपना नाम बदलते हैं एंड दे गेन अ लिटिल सक्सेस क्या बहुत सिग्निफिकेंट सक्सेस मिल जाती है। तो नाम बदलने का भी कुछ होता है क्या कि लाइक पहले कार्तिक तिवारी लिखते थे, कार्तिक आर्यन, पहले कार्तिक तिवारी लिखते थे, फिर देन समवन सजेस्टेड कि आप आर्यन लगाओ कार्तिक के आगे, देन ही स्टार्टेड यूजिंग कार्तिक आर्यन। देखिए वो एक फिल्मी चीज़ें हैं और फिल्मी नाम है। अभी जैसे तिवारी एक हीरो का नाम अभी तक आया नहीं कोई। अगर देखिए उनकी अगर क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है ऑब्वियसली होगी, इसलिए फेम मिल गया। अगर वो तिवारी भी रहते तो उनको यही सक्सेस मिलने वाला था। लेकिन ये अप्रीहेंशन और नाम बदलने से तो शेक्सपियर ने मना किया था, रोज बोल गया रोज नेम। तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट इंडिया के बाहर आप जाओ तो लोग हमारे ऊपर ऐसा शुरू कर दिया है कि व्हाट काइंड ऑफ ग्रामर वी आर यूजिंग। हमें नाम
अपनी स्पेलिंग चेंज कर देते हैं। आप वो ऐसा लगा लीजिए, 2 के लगा लीजिए, हाँ हाँ तो ऐसा इट इज़ नॉट राइट। मतलब हाँ वो तो उसका टाइम अच्छा था और उसको बचा था, उसको सक्सेस मिल गया। मैं आपको ऐसे 500 लोग दिखा दूंगा जिन्होंने स्पेलिंग खराब कर ली अपनी और कुछ भी नहीं हुआ, जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। इट इज़ योर कैपेबिलिटी, इट इज़ योर पोटेंशियल, इट इज़ योर टाइम एंड योर इंटेंट, योर हार्ड वर्क करब, वो सब डिपेंड करता है कि आपको सक्सेस कितना मिलने वाला। सर, अगर एस्ट्रोलॉजी की इतनी ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी आपस में बहुत कंफ्यूज्ड होती है। देखिए मुझे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो वो उसका प्रॉब्लम। न्यूमरोलॉजी आपकी, आपका जो नाम की स्पेलिंग आपने बोली थी, वो नाम की स्पेलिंग किससे कनेक्ट होती है? आपकी डेट ऑफ बर्थ से, राइट? हाँ। कि आपका डेट ऑफ बर्थ से सिंक होना चाहिए आपका नेम। तो डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है वो किसने बताई थी आपको कि डेट ऑफ बर्थ है? डॉक्टर कैलेंडर। वो कैलेंडर किसने बनाया था? इंसान ने। कब बनाया था? 466 ईयर्स पहले ग्रेगोरियन कैलेंडर बना। हाँ उससे पहले न्यू ईयर पता नहीं नवंबर में कब होता था, अक्टूबर, मौसम बदलने के साथ। तो उन्होंने 1 जनवरी जो शुरू होने वाला है, यहीं से न्यू ईयर शुरू होगा और पूरा कैलेंडर का सिस्टम चेंज हो गया। पहले कुछ अलग ईयर थे, वहाँ से ग्रेगोरियन ने दूसरा शुरू करा। तो ये बताइए, अभी चल रहा है 2023, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का चल रहा है और अभी इंडिया का जो कैलेंडर है उसमें 2079-80 चल रहा है। तो आप इंडियन होना है, आप इंडियन है, तो आप ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अपना डेट ऑफ बर्थ कैसे मैच कर रहे हैं? उससे नाम की स्पेलिंग भी खराब कर। और एक चीज़ और आप देखिएगा, 150 साल या 200 साल पहले पोप ने कहा नेक्स्ट 4 मंथ्स आर बैड फॉर ह्यूमैनिटी। हाँ हाँ तो उन्होंने 4 महीने डिलीट कर दिए। तो कौन सी है आपकी डेट ऑफ बर्थ? ऐसा भी कुछ हुआ था क्या? हाँ हाँ, वो उसका उनकी प्रेडिक्शंस थी कि आगे ऐसे कुछ कुछ 4 महीने हटा दिए ना, हाँ कैलेंडर से हटा दिए। कौन से डेट ऑफ बर्थ आपकी? जो डेट ऑफ बर्थ के बेस से आपने नाम की स्पेलिंग खराब की है, वो डेट ऑफ बर्थ ही वैलिड नहीं। तो सर, इतना कंफ्यूजन इन सब चीजों में मैं कह रहा हूँ कंफ्यूजन है ही नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। हाँ करेक्ट। हाँ, आई थिंक वो बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट क्योंकि इंडियन कल्चर में मिक्स हो गए हैं, इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्योंकि ऑब्वियसली 90% ऑफ द इंडियन अब एज ए सेट की ग्रेगोरियन कैलेंडर एक्सेप्ट कर चुकी है। हिंदू कैलेंडर के बारे में हम लोग धीरे धीरे भूल रहे हैं। करेक्ट। तो शायद इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है अब। नहीं ऐसा नहीं है। जैसा मैंने आपको, मैं तो लॉजिकल रीजन दे रहा हूँ, मैं तो कोई कंफ्यूजन तो दूर कर रहा हूँ एक्चुअली। आई एम लॉजिकल रीजन व्हाई चेंज ऑफ नेम स्पेलिंग हैज नो मीनिंग। अगर आप पाकिस्तान में पैदा होते तो कौन सी स्पेलिंग बदलते? उर्दू में लिख जाती है वहाँ। या चाइना में पैदा होते तो क्या होता? और ये बताइए, आपका नाम शेखर है, राइट? यस। तो शेखर, आप मान लीजिए कोई न्यूमरोलॉजिस्ट कहता है आपने स्पेलिंग चेंज की है अपनी, नहीं, तो आप अगर 2 एस लगा लेंगे तो फिर भी नाम का नाम क्या रहेगा आपका? शेखर ही होगा। क्योंकि नाम तो हिंदी का है, तो हिंदी का नाम है, स्पेलिंग इंग्लिश में चेंज कर रहे हैं। जितने मूवीज है, सीरियल है, सब हिंदी में है, स्पेलिंग टाइटल इंग्लिश में चेंज कर रहे हो भाई साहब। इससे क्या चेंज हो जाएगा? हिंदी में चेंज करिए ना, या तो इंग्लिश के डायलॉग बोलिए आप, आई लव यू के 2 बार किरण करके, आई एम शेखर विद 2 एस, ऐसा इंट्रोडक्शन शुरू हो रहा है। ऑलरेडी आई मेट फ्यू पीपल जो अपना इंट्रोडक्शन ऐसे ही देते हैं। हाँ, सर आपने बोला अभी ये सपने देखना अच्छी बात है, बट कुछ कुछ सपने होते हैं जो जिनका मुझे लगता है कि कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता होगा कि आपके सपने में आ रहे कि आपको बहुत सारे सांप दिख रहे हैं, आप कहीं से गिर रहे हो। क्या इन चीज़ों का आपकी रियल लाइफ में कुछ इफेक्ट होता है या कुछ मीनिंग होती है? देखिए सपने आर रिलेटेड टू सबकॉन्शियस माइंड। तो आप सबकॉन्शियसली दिन में क्या सोच रहे हैं, क्या फियर आपने क्रिएट किया हुआ है, क्या फोबियाज हैं आपको, उससे रिलेटेड आपके सपने आपके हो जाते। तो नेगेटिव सपने देखना मतलब यू हैव लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इन योर माइंड। पॉजिटिव सपने देखना मतलब यू हैव ए पॉजिटिव इंटेंट टुवर्ड्स लाइफ। तो इसीलिए बोला गया कि स्पिरिचुअलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीपल हु आर स्पिरिचुअल, उनका सबकॉन्शियस भी हैप्पी रहता है, पॉजिटिव रहता है। यू थिंक एंड यू फील एंड यू ड्रीम इवन पॉजिटिव हैप्पी थिंग्स। और अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटीज है कि अभी मैं 22 हो गया हूँ, मैं 23 हो गया हूँ, वो वहाँ से वहाँ चला गया, मैं उधर ही रह गया, यू आर कंपेयरिंग योर लाइफ विद अदर, देन इट इज नॉट ए ग्रेट आइडिया। वो हर इंसान की जर्नी है और वो भी जो उसकी डिफाइंड है वो उसको मिलने वाली है, चाहे वो कुछ भी हो। और जो नहीं मिला है वो कभी नहीं मिले। दैट इज हाउ इट इज। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव माइंडसेट विल क्रिएट ए पॉजिटिव सबकॉन्शियस माइंड विच विल गिव यू पॉजिटिव ड्रीम्स इन लाइफ। बाकी हर सपने का कोई ना कोई होता है, जैसे मैंने इनसिक्योरिटी बताई या कोई फियर फैक्टर बताया, बट उसमें बच जाइए, चेंज योरसेल्फ। इसीलिए मेडिटेशन प्लेज ए ग्रेट रोल। तो अगर आप मेडिटेशन को लाइफ में पार्ट बना लेते हैं, 5 मिनट 10 मिनट सुबह सुबह शाम रात को, एंड यू डोंट नीड टू गो टू एनी एस्ट्रोलॉजर, यू विल बी इन हैप्पी फ्रेम ऑफ माइंड, एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा, टॉलरेंस बढ़ जाएगा। 0 है, किसी का एक्सेप्टेंस नहीं है ना, पीपल हैव टॉलरेंस, हर बात से रिएक्ट कर जाते हैं लोग।
जरा सी बात, हाउ डेयर यू, तो है नहीं। तो जब पीपल आर हैव बिकम लाइक दिस इज हाउ दे आर मेकिंग लाइफ कॉम्प्लिकेटेड। सारे रिलेशनशिप की बैंड बज गई बिकॉज ऑफ जीरो टॉलरेंस एंड जीरो एक्सेप्टेंस। कोई बिगर पिक्चर दिखता नहीं है, छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हैं। आई नो व्हाट यू सेड, आई नो व्हाट यू मिक्स, जो सोचा नहीं कहा नहीं वो भी उसने हो दिया। तो इमेजिनेशन से दुनिया चल रही है। तो दैट इज हाउ पीपल आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। बट दूसरी साइड में कहूँगा ड्रीम्स जगह चाहिए, बिकॉज सोचोगे नहीं तो होगा कैसे। तो एक अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू लेट यू सी, लीव आर वन हु विल नॉट लेट यू सी। हाँ, तो वो होने चाहिए। ख्वाब भी ना जाने किस फिराक में रहते हैं, ये ख्वाब भी ना जाने किस फिराक में रहते हैं, पूरा तो होना चाहते हैं पर सोने भी नहीं देते। बहुत मैं माय की टेक अवे फ्रॉम दिस पॉडकास्ट इज कि आउट ऑफ एवरीथिंग मैं आपकी पोएट्रीज पढ़ता जाता हूँ बीटिंग। एक्चुअली वो जो आपने इल्म वाली बात पोएट्री कही एंड स्पेशली दिस ख्वाब वाली, ये एक्चुअली मतलब बहुत अच्छी है। मतलब आई हैड गूज़बम्प्स जब आपने अभी ये वाली लाइक। थैंक यू सो मच। देखिए एस्ट्रोलॉजर, आई एम ऑल्सो वेरी सिंपल पर्सन, बट एस्ट्रोलॉजी क्या करती है, आपको फिलोसोफर बना देती है। यू थिंक डिफरेंट। मैंने सबकी जिंदगी देख ली। मेरे क्लाइंट बिलियनर हैं, डॉलर और पाउंड में, सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, इंडस्ट्रियल हैं, पॉलिटिशियंस हैं। आई हैव सीन इट ऑल। अपने सिक्योरिटी गार्ड की, बिल्डिंग के गार्ड की कुंडली देख लेता हूँ। आई एम द चेयरमैन ऑफ माई सोसाइटी। इतनी बड़ी सोसाइटी है, 1,500 लोग रहते हैं। तो मुझे पता है कि ये 60 साल का इंसान भी बच्चा ही है, और कोई बच्चा बहुत उससे 60 साल वाले से ज़्यादा समझदार हो सकता है। तो इट इज़ नॉट अबाउट द एज, इट इज़ अबाउट द माइंड सेट। आपकी जो प्लैनेट है वो आपकी, जो मैंने कहा कि आपके माइंड सेट को डिवाइड करते हैं। तो ये देखते देखते आप खुद फिलोसफर हो गए। देन आई अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी। वंस यू अंडरस्टैंड थिंग देन यू स्टार्ट क्रिएटिंग इट इन योर माइंड। तो पोइट कब बनता है, जब आपके अंदर फिलोसफिकल बेंट ऑफ माइंड है। सर अभी आपने बोला ड्रीम्स में स्पिरिचुअलिटी है। अभी मेरा एक रीसेंट एक्सपीरियंस है। तो आई एम फ्रॉम वाराणसी। तो मैं यूजुअली जब हम लोग घर जाते हैं तो वी हैव टू विजिट काशी विश्वनाथ टेम्पल। हम लोग के फैमिली का एक रिचुअल है। तो मैं इस बार जब गया था तो सावन का महीना चल रहा था, तो बहुत भीड़ थी। तो फिर मैं वापस आ गया कि आज तो दर्शन नहीं हो पाऊंगा। और नेक्स्ट डे मेरी पुणे की ट्रेन थी। उसी रात को मुझे सपना आया कि मैं एक सांपों से भरे हुए रूम में हूँ। एंड देन आई वोक अप एंड आई टोल्ड माय मॉम, और उन्होंने बोला कि जाओ पहले दर्शन करके आओ। तो क्या स्पिरिचुअलिटी इस तरीके से, किसी तरीके से आपके सपनों में आके, ड्रीम्स कैन बी रिलेटेड टू गॉड, या गॉड्स मैसेज कैन बी टोल्ड थ्रू ड्रीम्स? देखिए हम लोग क्या है, हर चीज़ को लॉजिक वाले एंगल से कनेक्ट कर देते। देयर आर थिंग्स व्हिच आर बिगर देन दिस, बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। तो लॉट ऑफ थिंग्स वर्क लाइक दिस। कितने लोग हैं जो एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, दे गेट अमेजिंग सक्सेस। जिसको किसी को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिल गया। अभी आप देखिए, आई थिंक वो किसान का बेटा था, अभी एशियाड में उसको मेडल मिला। किसान का बेटा, मतलब उनके पास 200 रुपये 300 रुपये पे एवरी डे वो मजदूरी करता था, और अब वो हिस्ट्री में उसका नाम हो गया है, इंडियन हिस्ट्री में। तो कितने ऐसे बैकग्राउंड है। हम महेंद्र सिंह धोनी आज हम कहते हैं इज ए लेजेंड। वो कहाँ से आए, हम्बल बैकग्राउंड से आए थे। मतलब बिहार, झारखंड, मतलब लोगों को बैठने भी नहीं दिया जाता था पहले। यार तुम वहाँ से हो, चलो हटो। एंड ही बिकेम एन लेजेंड। तो इट इज समथिंग विच आर डिवाइन। ये बिना डिवाइन इंटरवेंशन के कुछ होता नहीं है, और उसका कोई मीटर नहीं है। आज कल आप क्या बनने वाले हैं, क्या आप क्या बनने वाले हैं, किसी को पता नहीं। तो इसीलिए लाइफ में हमेशा वो डिविनिटी को जोड़ के रखना है। तो जो आप कह रहे हो, आई बिलीव इन इट। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको रिलेट कराती है, कभी कभी मैसेज देती है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम और मे बी इन द फॉर्म ऑफ समथिंग यू कीप ऑन सीइंग एवरी टाइम। तो ये सारे इंडिकेशंस हैं जो आपको लेके जाते हैं। बट हैव दैट काइंड ऑफ आई ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर आपको डाउट वाला माइंड रहेगा कि यार ये क्या होता है, आई डोंट बिलीव, आई बिलीव इन कर्मा, आई बिलीव इन यूनिवर्स, देन यू आर yourself and negating something which has no logic to it, but it plays a great role. तो जो स्पिरिचुअल होता है वो हमेशा खुश रहता है, और मैं कहता हूँ कि जो खुश है वही खुश नसीब है। बिकॉज ओनली पर्पज ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस, एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी दैट मीन्स देयर इज समथिंग मिसिंग इन योर लाइफ। तो ब्रिंग दैट एलिमेंट ऑफ हैप्पीनेस नो मैटर व्हाट। किसी भी, और हैप्पीनेस की आदत डालनी पड़ती है। हैप्पी रहना आसान नहीं है। आज कोई आपको देख के ना खुश हो, या मुझे कोई देख के ना खुश है, तो बट ये तो आपकी आदत है। आप हर बात को कंपेयर कर रहे हैं सबके। कितना स्ट्रगल मैंने जिंदगी में किए, या कहाँ से आप आए किसी को पता नहीं। पीपल दे जस्ट कीप ऑन थिंकिंग इन ए शैलो वे। तो मुझे लगता है कि ये सोच आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, और आप अपनी लाइफ को अगर वो अपग्रेड करते रहेंगे विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, विद अ हैप्पी स्टेट। मैंने एक बार लिखा था कि ज़िंदगी में मुस्कुराने की आदत ज़रूर डाल, हैप्पीनेस की हैबिट बनाइए। तो ज़िंदगी में मुस्कुराने की आदत ज़रूर डालो, और ना मिले कोई वजह तो आईना ही देख डालो।
Look at the mirror and smile. And when you smile, your mind will think something good is happening. वैसी chemicals, emotion, आपके enzymes, आपके energies, आपका aura, आपकी vibrations होंगे. You will be surrounded by those positive energies, जिसको हम divine energy कह रहा था मैं. So that is how you attract more prosperity, more success. People will be attracted towards you in a good way. Opportunities आपको मिलती हैं. That is how you become. So your energy, सारा जो खेल है वो energy का है. So bring that energy within. Be a happy, optimistic person. Don't judge anyone. Don't compare your life with anyone. That is a very This is what you have to bring it. क्योंकि एक ही जिंदगी है, हंसकर गुजार लो. एक ही जिंदगी है, हंसकर गुजार लो. और वैसे भी तो जिंदगी गुजर ही जाए. सर आप इतने टाइम से एज एन एस्ट्रोलॉजर काम कर रहे हो, तो डू यू फील कि आप एनर्जी चाहे पॉजिटिव या चाहे नेगेटिव, आप उनको ज़्यादा फील कर सकते हो, आप उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हो, ऐसा आपको लगता है कि पर्सनली? Of course, yes. See, feel करना क्या मतलब, कोई मुझे टच तो नहीं करेगी एनर्जी, लेकिन when you see horoscope and you know what you are going through. तो एक तो इसके भी दो आंसर हैं एक्चुअली. एक तो इंसान का वक्त खराब है, तो चलो आई अंडरस्टैंड कि भाई ये टाइम खराब है, मे बी अभी 3 साल बाकी हैं, 5 साल बाकी हैं, कोई दशा ऐसी आ गई है डब्ल्यूटेड प्रेसिडेंट की जो आप कुछ भी कर लो कुछ नहीं होने वाला. तो यहाँ पे यू हैव टू मोटिवेट अ पर्सन, मेक देम अंडरस्टैंड, मेक देम रियलाइज कि भाई थोड़ा सा वक्त है, निकाल लीजिए. गलत टाइम पे आपने उसको गलत सपने दिखा दिए, दैट इज ऑल्सो क्राइम. किसी बोला अरे आपकी कुंडली तो बहुत अच्छी है जी और आपको बहुत बड़ा करेंगे और उसका टाइम खराब है, तो वो और उसके एक्सपेक्टेशन बढ़ गए आपने और वो और डिस्करेज हो जाएगा. So you have to be truthful, honest, and make a person realize that this is a time, this is what you can expect, or this is what you need to leave it to time. तो ये बहुत ज़रूरी है. और दूसरी तरफ अगर किसी का टाइम अच्छा है तो डेफिनेटली वो इंसान मोटिवेट हो जाता है, वो सोचता है. आपका क्वेश्चन क्या था? कि पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी. हाँ, एक तो हुआ उसका वक्त खराब, दूसरा है कि इंसान की फितरत ही खराब है. अब फितरत कैसे खराब है कि वो इंसान हर बात पे नेगेटिव सोचता है, या हर बात पे वो एक पेसिमिस्टिक है, या मैं कहूँगा बहुत ही अल्ट्रा सेंसिटिव इंसान, या वो इतना ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगाता है कि वो मैंने कहा कुछ और उसको लगता है कुछ और है, और वो यू नो मेरा कुछ एजेंडा है. वो खुद ही कुछ डाउट. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव अ टेंडेंसी टू डाउट ऑन एवरीथिंग. यार तुम बैठे तो हो पर तुम्हारा मकसद कुछ और है. यू हैव कॉल्ड मी फॉर समथिंग एल्स, यू नो. हाँ, तो वो डाउट करने बैठे थे. तो फिर वो तो उनकी प्रोग्रामिंग खराब है. वो प्रोग्रामिंग खराब है तो फिर वो उसकी नेगेटिव एनर्जी हमेशा ऐसी रहने वाली है. दैट इज द रीजन पीपल फील नोबडी अंडरस्टैंड मी. यू नो, मैं तो सबके लिए कुछ करता हूँ लेकिन मुझे कोई हेल्प नहीं करता, बिकॉज ऐसे लोग सेल्फ पिटी जोन में चले जाते. एंड वन यू गो इनटू दैट, देन यू कीप ऑन क्लेमिंग, कीप ऑन ब्लेमिंग. इसीलिए कहा जाता है मैनेजमेंट में सबसे बड़ी लाइन है, यू नो, डेलीगेशन ऑफ पावर, लीविंग थिंग्स टू अदर. अ गुड मैनेजर इज वन हु लेट अदर्स डू ऑल द जॉब. और जिंदगी की मैनेजमेंट कैसी है? गिव योर बेस्ट एंड लीव हिम द रेस्ट. इफ देयर इज नो हिम इन योर लाइफ देन यू विल बी वनरेबल. इसलिए एक डिवाइन कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट होना बहुत जरूरी है. कोई भी बिलीव हो. अब ऐसा नहीं है कि आप शनिवार को यहाँ और मंगलवार को वहाँ वाले मंदिर जा रहे हैं. दैट इज योर रिचुअल आप फॉलो करिए जैसा भी करना है, बट स्पिरिचुअल हो जाए. तो बीइंग मोर स्पिरिचुअल इज बेटर देन बीइंग रिचुअल, फॉलोइंग रिचुअल. सर क्या हमें ज़रूरी है एक नॉर्मल इंसान को पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी फील करना ज़रूरी? क्योंकि कभी कभी होता है कि इंसान के सामने वाला जो होता है वो उसके लिए गलत इंटेंशन के साथ आ रहा होता है, या पॉजिटिव इंटेंशन वो हमें एनर्जी के थ्रू फील हो जाता है. वो बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस वो फील हो जाता है. तो वो उस चीज़ को हम कैसे एनहांस कर सकते हैं, या हमें ज़रूरत है उस चीज़ की भी या नहीं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि सबकी फितरत अलग है. वो अगर आप जज करने बैठ गए, अब मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं आपका फेस, आपकी आईब्रोज, फोरहेड, ईयर्स देख के मुझे समझ में आया ये कमीना है या ये कैसा है. सबकी सोच अलग है, यू नो, पीपल. तो आई नेवर जज दैट. अब कॉन्शियस में आ जाता है. अभी वो एयर होस्टेस आपको पूछ रही है सर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, और मैं देख रहा हूँ कि यार ये इसका तो बड़ा मतलब थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है, या ये इसका नेचर ऐसा है. तो सब कॉन्शियस इज ऑलवेज एक्टिव, बट वो जज मत करिए, क्योंकि अगर आप जज करेंगे तो फिर यू विल बिकम अ लोनर एंड यू कांट चेंज दिस वर्ल्ड. नो, पीपल हैव बिकम डिफरेंट. सबकी अप्रोच अलग है, सोच बदल गई है. हमारे पेरेंट्स जैसे थे, अब आप देख लीजिए, यू नो, इट इज टोटल नया सिस्टम टूट चुका है. पीपल हैव बिकम डिफरेंट. लोग बदल गए, ज़माना बदल गया, तुझसे मोहब्बत करने का इरादा बदल गया, और ये दिल तुझी को चाहता था कम वक्त बदल गया, और ज़िंदगी तुझको जीने का मकसद बदल गया. तो पीपल हैव चेंज, देयर जर्नी हैज चेंज, एंड इवन देयर यू नो वांट और डिज़ायर हैव चेंज. तो दैट इज हाउ पीपल आर बिकमिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड इन अ डिफरेंट. तो जज मत करिए. इतने सारे बातें हैं जैसे, तो क्या कोई स्कूल ऑफ थॉट स्पेसिफिक, बिकॉज जो हम लोगों ने देखा है स्पेशली हिंदुइज्म, हम लोग बहुत तरीके से
कर्म और धर्म को मिक्स करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग कुंडली की बात कर रहे थे, हम लोग हॉरोस्कोप्स की बात कर रहे थे। हिंदुइज्म में हैंड रीडिंग का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा है, या फेस रीडिंग का कॉन्सेप्ट भी है। तो इस तरीके से इतने सारे स्कूल ऑफ थॉट्स को या इतनी सारी तरीके की चीज़ों को कैसे, बिकॉज अगर मैं एक हैंड रीडर के पास जाऊंगा वो हाथ देख के शायद कुछ बताए, एक एस्ट्रोलॉजर मेरी कुंडली देख के कुछ और बता दे, एक फेस रीडर मेरा फेशियल एक्सप्रेशंस मेरे देख के शायद कुछ और ही बता दे। तो इन सब के साथ क्या मतलब कोई एक सही चीज़ है, ये सारी सही चीज़ें अलग अलग पर्सपेक्टिव से क्या रियलिटी है? या चारों में रिजल्ट सेम ही आता है? देखिए नहीं, ऑब्वियसली एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड एंड अभी डॉक्टर जाता है वो आपका हार्ट बीट भी देखेगा, आपका पल्स भी देखेगा, एवरीथिंग एज ए यू नो सम कनेक्शन इन ए वे। तो पामिस्ट्री प्लेज अ ग्रेट रोल, फेस रीडिंग प्लेज अ ग्रेट रोल, एस्ट्रोलॉजी, बट ये ऐसा नहीं होता कि कुंडली में ऐसा और फेस वैसा है या हाथ की लाइन कुछ और है, दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। तो आई तो इनकॉर्पोरेट एवरीथिंग, पामिस्ट्री फेस रीडिंग और उसको मैं साथ में लेकर चलता हूँ, बिकॉज कभी कभी तो आप दोनों मान लीजिए एक ही साथ पैदा हुए तो जरूरी नहीं कि आपकी जर्नी एक साथ होगी, बिकॉज आपकी पाम की लाइन अलग है, इनकी अलग है, सबकी ट्रैक अलग है, उनका अलग है, सोच अलग है, तो एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो दैट इज हाउ यू कैन पिन पॉइंट एंड गिव अ बेटर प्रेडिक्शन व्हेन यू इनकॉर्पोरेट पामिस्ट्री विजिटिंग एंड हॉरोस्कोप टुगेदर। सर अगर आइडेंटिकल ट्विंस पैदा होते हैं तो और सेम टाइम पे पैदा होते हैं suppose, तो क्या ऐसा है कि उनके, क्योंकि अगर एग्जैक्ट सेम टाइम पे पैदा हो तो उनके तो स्टार्स बिल्कुल ही ओवरलैपिंग है, तो क्या बिल्कुल हम सही कर रहे हैं, लेकिन जर्नी फिर भी डिफरेंट होती है। उसके पीछे एक टर्म है, उसे कहते हैं षष्ठी अंश, 160th, उससे पता चल जाता है कि इनका दोनों का ट्रैक क्या है। और बहुत ही सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ तो थर्ड हाउस छोटे भाई का होता है, तो बड़े भाई के से छोटे भाई का देखिए जो आधा घंटा 1 घंटा पहले पैदा हुआ है, तो उसकी ज़िंदगी दिख जाएगी, और छोटे भाई से 11th हाउस देखिए तो बड़ा भाई कैसा है, तो वहाँ से भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। और उसी जो पाम की लाइनें हैं वो दोनों की अलग होंगी, ये कंफर्म। हाँ क्या पास्ट कर्मास भी इफेक्ट करते हैं? ऑफ कोर्स यस, एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत वहीं से होती है, प्रारब्ध कहते हैं, दैट डीड्स डन इन द पास्ट बर्थ एंड दे आर रिस्पांसिबल फॉर हिज बर्थ। जैसे मैंने कहा, यू कांट चूज योर पेरेंट, इट डिपेंड्स ऑन योर पास्ट वो। एब्सोल्युटली। तो कोई लोग पैदा होते हैं सिल्वर स्पून के साथ, कई बेचारे कहीं छोटे से गांव में उनकी पूरी जिंदगी खेतों में निकल जाती है, तो वो वहीं पे रह जाते हैं। और कितने लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और कोई सेलिब्रिटी बन जाता है या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता है, दैट इज हाउ इट इज। तो कहाँ से आप शुरू हुए इसमें आपका कोई रोल नहीं है, कहाँ आप पहुँचने वाले हैं, नाउ डिपेंड्स ऑन यू, योर एफर्ट्स, योर कॉन्शियस, योर पॉजिटिविटी, योर ऑप्टिमिज्म, योर हार्ड वर्क, एवरीथिंग इम्पोर्टेंट, एंड अगेन टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट। सर इफ मैंने ये सुना है कि इफ वी फॉलो स्पिरिचुअलिज्म देन यू आर अबव दीज कुंडलीज एंड दीज पारमिट, ये आपके होते हैं, ऑब्वियसली लाइंस तो नहीं जाती है, बट आप इनसे ऊपर हो जाते हो, ये आपको डिफाइन नहीं करते हैं। मैंने पोएट्री लिखी थी, भूल गया मैं, कि इन हाथों के ऊपर, इन लकीरों से ऊपर कुछ तो है, इन सितारों से ऊपर कुछ तो है। तो ऑब्वियसली पीपल हु आर स्पिरिचुअल दे डोंट नीड टू गो टू एस्ट्रोलॉजर। ऐसा नहीं कि गुड और बैड उनको अफेक्ट नहीं करता है, उनका एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। तो वंस यू बिकम स्पिरिचुअल देन यू बिकम ए डिफरेंट पर्सन। तब आपको छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान भी नहीं देंगे, एंड यू विल बी इन हैप्पी स्पेस, बिकॉज आपने मेडिटेट किया हुआ है, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, दैट इज हाउ दे आर इन ए ब्लिसफुल स्टेट। तो इसलिए बोलते हैं कि व्हाट यू गेट व्हेन यू बिकम स्पिरिचुअल, ब्लिस, स्टेट ऑफ ब्लिस, यू विल बी हैप्पी नो मैटर व्हाट। भले ही आपकी कोई भी दशा चल रही है, कोई 7:30 आ गई, क्या हो गया, लोग डराते हैं, यू विल नॉट हैव दैट इम्पैक्ट। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लैनेट इधर है, आप इधर हैं, द मोमेंट यू गो अबव दैट स्पिरिचुअल स्पेस में आएंगे तो इनका इफेक्ट जो है मिनिमल हो जाएगा। तो दशाएं आएंगी, एस्ट्रोलॉजी फेल नहीं होगी, दे हैव इवॉल्व। तो जब आप अपने आप को इवॉल्व कर लेते हैं तो फिर आपकी जो भी नेगेटिव, ये सारे जो हम कहते हैं ये वक्त खराब है, वक्त क्या खराब है, दशा खराब है किसी प्लैनेट की, जो प्लैनेट खराब, तो दशा खराब है तो किस पे इम्पैक्ट करता है, जो हम वहाँ मून की बात कर रहे हैं, 8 planet influence your 1 planet which is moon. When you meditate and become spiritual, so your moon is become so happy that no impact of any negative planet can influence. बेसिकली बहुत सेम सिचुएशंस आपको कम परेशान करने लगते Yes. सर व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ जेम्स, जैसे शिखर हाँ। एक अंगूठी पहनता है, सो आई थिंक जेम्स बहुत ही ऐसे सब्जेक्टिवली लोग, ये क्या आपने गार्नेट पहना हुआ, आई थिंक या रूबी है, पता नहीं, दिख नहीं रहा मुझे। आप देख सकते हैं एक्चुअली नहीं, आपको पता नहीं है क्या नहीं, रूबी है तो ठीक है, गार्नेट है तो जैसे मिडिल फिंगर, आई डोंट नो व्हाट इट इज। आई थिंक दैट इट्स रूबी, हाँ। क्योंकि जो हम लोग के फैमिली पंडित है उन्होंने बोला था टू वेयर दिस विन इन हाउस रिंग ऑफ गोल्ड, तो आई थिंक वो रूबी था। हां, तो देन रूबी इज इट इज फाइन। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दीज जेम्स की एक
स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए, एक स्पेसिफिक परेशानी, इशू, उसके लिए एक जेम को वो किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। नहीं, परेशानी के लिए नहीं। देखिए प्लैनेट्स आपके लिए जो अच्छे हैं, जैसे एक प्लैनेट आपकी हेल्थ के लिए, मान लीजिए इन्होंने, इनका सन इनका रूलर है, मान लीजिए एसेंडेंट लॉर्ड जो हेल्थ को रूल करता है, तो हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबव वेल्थ बोलते हैं। वेइंग ए रूबी विल स्ट्रेंथन हिज सन, तो हिज हेल्थ विल बिकम बेटर। या प्रोफेशन का लॉर्ड है तो इट विल हेल्प टू, या लर्निंग का लॉर्ड है तो इट विल हेल्प हिम टू फिनिश हिज स्टडीज और गेट रिकॉग्निशन। या लक का लॉर्ड है, तो डिपेंडिंग ऑन विच प्लैनेट इन योर हॉरोस्कोप। तो ऐसा नहीं इन्होंने पहन ली और उनको सक्सेस मिल गया, आप भी पहन लीजिए, दैट इज नॉट राइट। इनका हॉरोस्कोप अलग है, आपका अलग है, और डिपेंड करता है प्लैनेट कहाँ प्लेस्ड है, वो किस प्लैनेट की दशा चल रही है। तो देयर लॉट ऑफ कैलकुलेशंस बिहाइंड। ऐसा स्टोन तो आपने नहीं पहन लिया है जिस दो गेंस दे रहा है लेकिन आपकी हेल्थ की बैंड बजा रहा है। आप मुझे वेरी केयरफुल, यू नो, इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड। 100%। मैं एक बार मजाक में कह रहा था कि हर नीलम पहन के सोचा मैं भी बच्चन बन जाऊँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चन है नीला आया है तो आप भी बच्चन सा बन जाएंगे, ऐसा नहीं। सर जेम्स को मेटल से क्यों एसोसिएट करते हैं कि ये जेम इसी मेटल की अंगूठी पे पहने? जी, उसमें है रूल्स हैं, हर स्टोन का एक अलग मेटल है जो उसके आपको कंफर्ट होता है। जैसे नीलम को गोल्ड में नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो सन है और वो सैटर्न है, दोनों का दुश्मनी है। एमरल्ड है जो सिल्वर गोल्ड दोनों में पहना जा सकता है, तो डिपेंडिंग ऑन विच स्टोन। सो बेसिकली मेटल्स के भी प्लैनेट्स होते हैं जो नहीं, मेटल्स के साथ उनका कनेक्शन होता है। जैसे गोल्ड जो है बेसिकली इट इज इधर फॉर जुपिटर और सन, तो वो प्लैनेट के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है उस पर डिपेंड। Gems have the tendency to absorb energy and reflect back to the person wearing that. एब्सोल्युटली। देखिए इसको आप कलर थेरेपी में लीजिए, इसको आप एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है। जैसे आपने कोई स्टोन नहीं पहना, मैं बोलूँ कि ये स्टोन आप पहन लीजिए, तो कल से ही आपको याद दिलाएगा यार आई एम वेयरिंग समथिंग यू नो विच इज गुड फॉर मी, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव हो जाए। प्लेसिबो इफेक्ट, इट विल रिमाइंड यू ईच एंड एवरी सिंगल डे यू आर वेयरिंग समथिंग नाउ विच इज गुड फॉर यू एंड विच इज सपोर्ट यू टू डू गुड इन व्हाटएवर वे। तो ये है, तो साइकोलॉजिकली सबकॉन्शियसली मतलब इट विल सपोर्ट यू। तो एनीथिंग व्हिच इज सपोर्टिंग यू इन ए वे, मीटर तो है नहीं, मैं उतार देता हूँ अभी, और मीटर तो मेरे पास है नहीं कि उतारते ही मेरा ये 70% था अभी 50 हो गया, 20 हो गया। तो इट इज फेथ पे। तो वन यू वेयर समथिंग आउट ऑफ फेथ देन इट विल स्टार्ट इम्पैक्टिंग यू। तो अगर आप कोई जबरदस्ती कोई बना रहा है कि उनकी मॉम ने बना दिया और इनको ये डजंट लाइक इट एंड बार बार निकाल देते हैं, घर से निकलते हैं, इट विल हैव नो इम्पैक्ट। So this is what you need to bring in. तो बेसिकली दिस इज जेमस्टोन्स भी प्लेसिबो के बहुत। देखिए मैं तो कह रहा हूँ कम से कम प्लेसिबो मान लीजिए। हाँ, मीटर तो है नहीं, तो आई कांट गिव यू कि आप इसको निकालिए देखिए आई विल शो यू, तो देयर इज नो प्रूफ। एस्ट्रोलॉजी का अभी एक भी प्लैनेट यहाँ पे मून और सन के अलावा एक भी प्लैनेट दिखा नहीं। कभी कभी वो वीनस कभी दिख जाता है, मार्स दिख जाता है, बट यू डोंट इवन यू नो वो तो दिखते ही नहीं है। सैटर्न जो पूरी दुनिया डरती है वो आपने कभी देखा नहीं। और सबसे ज़्यादा अगर कोई डरता है तो शनि से डरता है, और शनि नॉट इवन विजिबल फ्रॉम योर नेकेड आइज। तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट स्टिल ये एस्ट्रोलॉजी है कि हर प्लैनेट का इम्पैक्ट है एंड यू हैव टू हैव इट। अगर आप यही सोच लो कि एस्ट्रोलॉजी इज ए गिमिक एंड आई डोंट बिलीव इन इट, तो फिर आप कभी जाओगे नहीं एस्ट्रोलॉजी के पास एंड यू विल नेवर बी एबल टू टेक दैट काइंड ऑफ गाइडेंस व्हिच कैन अदरवाइज वुड हैव हेल्प यू टू प्लान योर लाइफ इन द राइट। सर आपने बोला शनि लोगों का भारी होता है, किसी का शनि भारी है, तो व्हाट काइंड ऑफ जेम वी शुड वेयर? देखिए भारी और हल्का नहीं होता है, या तो वो बैड है या गुड है, ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। आप लोग कह रहे हैं, आपने सुन के ही बोला होगा, वो मैंने कहा ना फियर, दिस इज अ फियर हो गया है। तो सैटर्न इफ इट इज अ गुड सैटर्न, तो जैसे बच्चन साहब है उनका सैटर्न उनका असेंडिंग लॉर्ड है हेल्थ, तो इज नॉट वेयरिंग इट फॉर फेम, ही इज वेयरिंग इट फॉर हेल्थ। तो ये वे लोगों का मिसकंसेप्शन है कि ये पहनने से ये हो जाएगा, वो पहनने से वो हो जाएगा। एवरी हॉरोस्कोप में हर इंसान के लिए वो कोई प्लैनेट आपके लिए अच्छा है तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड सेकेंडली एवरी प्लैनेट हैज ए रोल टू प्ले इन योर लाइफ। तो वो स्टोन अगर आप पहनेंगे तो इट विल एनहेंस द प्रॉपर्टीज और द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट एंड द प्लैनेट विच रूल्स दैट पर्टिकुलर हाउस, वो एक्टिव हो जाएगा, विच इज अ गुड थिंग। सर आप इतने सारे पॉपुलर लोगों को या सक्सेसफुल लोगों को एक एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करते हैं। आपने ये देखा है क्या कभी कि कोई बहुत ही सक्सेसफुल इंसान जो एस्ट्रोलॉजी में नहीं भी मानता है, वो स्टिल अपनी पोजीशन होल्ड किया हुआ है अच्छे से बिकॉज ऑफ जस्ट हिज की कर्म उसके अच्छे है या वो काम पे बहुत फोकस्ड है? बिल्कुल, there are people who don't believe in astrology, but ऐसा थोड़ी कि एस्ट्रोलॉजर थोड़ी आपकी जिंदगी को बदल रहा है। एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड कर रहा है। जैसे जीपीएस आपको ना तो ड्राइविंग सिखा रही, ना आपके लिए फ्लाईओवर बना के दे रही। जीपीएस आपको खाली बता रही है कि व्हाट इज योर पाथ,
टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। तो एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो ए गाइडिंग टूल। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर क्लेम कर रहा है कि आप मेरे पास आइए और मैं आपकी ज़िंदगी बदल दूंगा, वो रॉन्ग है। नो मैन हैज द पावर टू चेंज अ सिंगल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। द पर्पस ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज टू गाइड यू, मेक यू अवेयर अबाउट हु यू आर। तो मैंने कहा कि अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, पोटेंशियल और सबसे इंपॉर्टेंट अपने टाइम को जान जाइए। दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर ये पता चल गया, इट इज अ टूल। इसके अलावा तो कोई कंप्यूटर भी बता नहीं सकता, सुपर कंप्यूटर भी बता नहीं सकता कल क्या होने वाला है। आज भी प्रेडिक्शन होती है, कल बारिश होगी, छुट्टी हो जाती है यहाँ पे कितनी बार, और बारिश हुई भी नहीं। हाँ, तो जब इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही है प्रेडिक्शन में, और एस्ट्रोलॉजर आपको बता रहा है, वो काम कर रहा है, तो सोचिए कि हाउ डिवाइन इट इज, हाउ प्योर इट इज। तो एस्ट्रोलॉजी को मैं कभी भी डाउट इसके नजरिए से नहीं देख सकता। बट येस, एज यू सेड कि पीपल हु डोंट बिलीव इन इट, उनकी जर्नी ऑलरेडी डिफाइंड है, एंड इफ दे नो what they need to do and their behavior is right and they are spiritual people, so that is how they get successful. Belief system उनका intact है। देखिए एस्ट्रोलॉजर के पास कौन जाता है? People who are in dilemma, they don't know what is going to happen, और people who are over ambitious actually, या तो डिस्ट्रेस में होगा या ओवर एम्बिशन में जाएगा। हाँ, कि भाई मैं कब बनूंगा, ये अगला शाहरुख खान मुझे बनना है, या मुझे सबसे ज़्यादा पावर चाहिए, पैसा चाहिए, वो सुपर एस्पिरेशन के साथ जाते हैं। या पीपल हु आर ऑलरेडी इन डेट, और पीपल हु डोंट नो व्हाट टू डू, पीपल हु आर डिप्रेस्ड, वो कोई होप या कोई वो अपनी जर्नी को जानने के लिए जाते हैं। दैट इज हाउ मोस्टली पीपल को, कि आप चीज़ें बदल गई हैं, रिलेशनशिप हैज बिकम ए बिग इशू। तो मैंने कहा विदाउट एक्सेप्टेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, तो कन्फ्लिक्ट होते चले जा रहे हैं। दैट इज हाउ यू लुक फॉर सम काइंड ऑफ गाइडेंस एंड आंसर। सर लास्टली इतनी सारी बातें हो गई हैं स्पिरिचुअलिज्म पे, न्यूरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कुंडली। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर एक इंसान एक हेल्दी माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता है, तो क्या एक आइडियल दिनचर्या होनी चाहिए उसके लिए, कि वो अपने जो वर्ल्डली डिजायर्स, वो आई थिंक मटीरियलिस्टिक आज की दुनिया में होना इज अ लिटिल इम्पोर्टेंट इज वो, बट साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहना इज, आई स्टिल फील द कोर ऑफ टुडेज वर्ल्ड। तो एक आइडियलिस्टिक इंसान की क्या दिनचर्या होनी चाहिए कि वो इन दोनों चीज़ों में बैलेंस क्रिएट? देखिए, आपकी मटेरियलिज्म और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस बनाना ज़रूरी है। अगर मैं बोलूँ कि देखा मैं स्पिरिचुअल पर्सन, तो आप रोज़ माला पहनने बैठ जाओ या वृंदावन चले जाओ, तो अगेन यू विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग, या यू विल गो इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बट यू हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योरसेल्फ, टुवर्ड्स योर फैमिली, maybe towards your society as I've said. You have to maintain a balance between your spiritual life and materialistic life. तो दोनों में अगर आप टोटली मटेरियलिस्टिक हो गए, तो आप पूरा बर्न आउट हो जाएगा। यू विल नॉट बी हैप्पी, यू विल नॉट बी कंटेंट, बिकॉज यू आर नॉट स्पिरिचुअल। एक किसी का स्टेटमेंट था, द पीपल, देयर आर पीपल हु आर सो पुअर इन लाइफ, द ओनली थिंग दे हैव इज मनी, बिकॉज दे डिडंट रियलाइज कि हैप्पीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो खुश है वो खुश नसीब है, जो मैंने आपसे कहा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। मैंने एक बार लिखा था, खुश नसीब है वो लोग जो खुश रहा करते हैं, खुश नसीब है वो लोग जो खुश रहा करते हैं, और ऐसे सितारे किस काम के जो रात भर जगा करते हैं। तो इफ यू आर वेटिंग कि वो एस्ट्रोलॉजर आपकी लाइफ बदल देगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। एस्ट्रोलॉजर आपको बदल सकता है, आपकी जर्नी के बारे में बता सकता है, और अगर आपको ये बात पता चल गई, बिकॉज देयर इज नो अदर वे। जैसे मैंने कहा, 60 साल में भी रियलाइजेशन नहीं होता है कि देयर इज सम शॉर्टकमिंग और सम यू नो देयर इज सम सिचुएशन इन यू। और एस्ट्रोलॉजर आपको पहले से रियलाइज करा रहा है, दिस इज वेयर यू नीड टू वर्क ऑन। अगर आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करोगे तो आपकी वाइफ भाग जाएगी, या आपकी शादी नहीं होगी। तो अगर ये आपको पहले से पता है, उसको उस पर काम करो। तो अगर आपने खुद को बदल लिया, दैट इज हाउ लाइफ इज चेंज, अदरवाइज इट विल रिमेन द सेम। तो एस्ट्रोलॉजर से बड़ा आपका दोस्त नहीं हो सकता। एस्ट्रोलॉजर कैन बी योर फ्रेंड फॉर लाइफ। ही इज गाइडिंग यू, इज मेकिंग यू अवेयर अबाउट योरसेल्फ, हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड योर जर्नी ऑफ लाइफ। और एस्ट्रोलॉजर आपको कह रहा है कि स्पिरिचुअल हो जाइए, मेडिटेट करिए 10 मिनट के लिए। तो आपने दिनचर्या बोला, शुरुआत करिए एक थैंक्स वाले थॉट के साथ, यू नो, भगवान को धन्यवाद करिए। वो किसी ने कहा था कि हम रोज अलार्म लगा के सोते हैं और ये पता ही नहीं होता कि सुबह उठेंगे कि नहीं। तो ये उम्मीद है। हाँ, एक उम्मीद पे दुनिया चलती है। होप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। तो अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहते हैं, सुबह उठते हैं, यू नो, एक मेडिटेशन को लाइफ का पार्ट बना लेते हैं, एंड ग्रेटफुल रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका बिहेवियर, कि आप, चाहे वो एक छोटा सा आपकी गाड़ी को साफ करने वाला कोई लड़का है, या आप ऑटो कर रहे हैं, उससे आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, काम करने वालों से कैसे कर रहे हैं, तो योर बिहेवियर प्लेज अ रोल। So if you are creating that smile within you and around you, that is how you will get always the positive things in life. ये है सक्सेस। तो एनर्जी पे काम करिए। हैप्पीनेस, हैप्पी एनर्जी can help you to achieve what you want, and your doubts and your negative mindset and your negative behavior, bad behavior will keep on repelling everyone away, and then you will be in a situation और फिर वो सेल्फ पिटी में चले जाएंगे, why me।
सर ये कॉन्वर्सेशन हम लोग के लिए बहुत ही, मेरे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अवेकनिंग रही है, क्योंकि जैसा मैंने कहा मैं ज़ोडिएक साइंस पे कंफ्यूज था, मैं कैलेंडर्स पे कंफ्यूज था, बट ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड की मुझे कि ज़ोडिएक साइंस एक्चुअली सन साइन मून साइन क्या होता है ये। एंड आई होप कि हम लोग के व्यूअर्स को भी उतना ही मिला होगा, उतनी नॉलेज मिली होगी कि एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी के पीछे साइंस है। देयर इज अ लॉजिक टू एवरीथिंग। एब्सोल्यूट। ऐसा नहीं कि एंसेस्टर्स कुछ कर रहे थे और वो सिर्फ मिथ्स है या वो जिसे कहते हैं कि प्रैक्टिसेस है शिट, ठीक है। ये एक्चुअली देयर इज अ साइंस टू एवरीथिंग। एंड अगर इस पे आप कुछ ऐड करना चाहते हो अबाउट द साइंटिफिक पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जी बिल्कुल। देखिए अभी क्या है, जैसे मैंने कहा कि एक रिलीजन का पार्ट है, एक रिलीजन है और एक स्पिरिचुअल। मेरे ख्याल से रिलीजन मैन मेड। जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे को किंडरगार्टन ले जाते हैं, ए फॉर एप्पल है और ये रेड कलर है, तो यही मानते हैं कि एक दिन बच्चा बड़ा होगा, ग्रेजुएट हो जाएगा। वो रिलीजन भी इसीलिए क्रिएट किया था कि एक दिन इंसान स्पिरिचुअल हो जाएगा। तो पीपल आर फॉलोइंग रिचुअल्स, बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट बिकमिंग स्पिरिचुअल। So the moment you become spiritual, then you have gone above that. तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जो हैप्पीनेस ओनली उसी को आती है तो इंसान स्पिरिचुअल होता है। स्पिरिचुअलिटी प्लेज ए ग्रेट रोल। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में 9th हाउस होता है, हाउस ऑफ लक होता है, एंड 9th हाउस हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो द मोर स्पिरिचुअल यू बिकम, द मोर लक इज गोइंग टू फेवर यू, बिकॉज वो डिवाइन एनर्जीज है, एंड ऑफ गॉड है, एंड दैट इज हाउ यू गेट। तो बेसिकली रिलीजियस नहीं, स्पिरिचुअल बनो। एब्सोल्युटली। और मैं तो कभी भी अपनी लाइफ प्लान नहीं करता, आई जस्ट गो विद द फ्लो। आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव पर्सन। मैं देखिए जरूर नहीं मेरी जिंदगी परफेक्ट हो, लेकिन जो भी सिचुएशन है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए एंड स्टिल लुक फॉर समथिंग पॉजिटिव इन लाइफ। एब्सोल्यूट। कि जिंदगी तो महज एक दरिया है, जिंदगी तो महज एक दरिया है, बहते चलो, बस यही एक जरिया। जस्ट गो विद द फ्लो। मैं आपकी पोएट्रीज का फैन हो गया इस पॉडकास्ट लिटरली। मतलब ऑल द पोएट्रीज मैं इनिशियली सोचा कि ये बाद में नोट करूंगा, देन आई रियलाइज की वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं बाद में सुनूंगा। वो सब पेटेंट है, 5-5 लाख रुपए की एक पोएट्री। कहीं नहीं यूज कर रहा था, बट एटलीस्ट रात को सो पढ़ के सो तो सकता हूँ। श्योर। So with this we have come to the end of the podcast, and it was great having you here all. Kataksh with us. Thank you so much for coming, sir. Thank you. तो कैसे लगे आज के कटाक्ष? उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको भी उतना इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपने कटाक्ष। हमारे साथ कटाक्ष करना मत भूलना।